आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है अकबर एंड बीरबल। बीरबल वॉज द फेवरेट courtier ऑफ अकबर। अकबर liked him because he was the wisest of all। जो बीरबल था वो सबसे फेवरेट courtier था अकबर का, और अकबर उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता था। But the other courtiers were jealous of him. They were always making plan to harm him. लेकिन जो बाकी सभासद थे वो उससे बड़े जलते थे, वो हमेशा उसे हार्म पहुंचाने की इच्छा रखते थे। Once courtiers told the imperious barber that people can go to heaven. They bribed the barber. Then they told him to persuade the emperor to send people to heaven. एक बार की बात है, सभी सभासद ने ऐसा प्लान बनाया कि उन्होंने राजा से बोला कि जो बीरबल है वो स्वर्ग में जा सकता है, और इस बात की उन्होंने ब्राइब भी किया था बारबर को, और अपना पूरा प्लान कामयाब करने के लिए उन्होंने बीरबल को हेवन भेजने के लिए अकबर को मना भी लिया था। सो नेक्स्ट टाइम when the barber visited the royal palace, he asked the emperor, "Your Majesty, Birbal has the ability to go to heaven and come back. Why do not you send Birbal to heaven? He can go there and find out how your ancestors are living there." अब वो बाबर सभा में आता है और अकबर से क्या कहता है कि आपको पता है कि जो बीरबल है वो हेवन में, स्वर्ग में जाके वापस आ सकता है, पता लगा सकता है जो आपके एंसेस्टर्स है वो कैसे हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या उन्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है। Akbar knew that the barber had been befooled, but in order to test Birbal's wisdom, he agreed to the plan of the barber. Akbar said that is very nice, but how do we send him there? The barber replied, "That is very simple, Samrat. We will make Birbal sit in the pyre, then we will fire the pyre, and then Birbal will reach heaven." अब जो राजा था उसे पता था कि ये सब साजिश है, लेकिन बीरबल की बुद्धि चेक करने के लिए उसने हाँ कर दिया। उसने पूछा कैसे भेजा जाएगा, तो कहते हैं कि हम लकड़ी पे उसको बिठाएंगे, उसे जलाएंगे, फिर कहते हैं उसे वापस लेकर आएंगे जब वो पहुंच जाएगा। अकबर smiled and said, "All right." Birbal was immediately called to the court. He was told about the desire of the emperor. Birbal at once understood the whole matter. Therefore, he agreed to be sent to heaven. अब अकबर इस बात पे हंस के मान जाता है, बीरबल को बुलाया जाता है, बीरबल को सारी कहानी पर बताई जाती है और बीरबल सब समझ जाता है और वो इस बात को मान जाता है। On the appointment day, a big pyre was made. Birbal was made to sit in it. The countries who were jealous of Birbal were very happy. They knew this was the best way to get rid of him. Akbar was watching the scene. He knew what was passing in the mind of other countries. अब जो बाकी जो देश के लोग थे जो बीरबल से जलते थे वो बड़े खुश थे इस चीज से। अब जैसे जैसा प्लान वैसे करा गया और अकबर भी वहां पे मौजूद था और ये सब देख रहा था, वो भी दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ने की इच्छा रख रहा था कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है ये देखकर। And then the pyre was lit. The jealous countries were happy. They thought they had got Birbal burned to death. After some of days, Birbal reappeared at the court. The countries were dumbstruck, but the emperor knew the truth. अब जैसे इसमें आग लगाई गई, सबको लगा, सब बड़े खुश हो गए कि बीरबल से छुटकारा मिला। लेकिन कुछ दिन बाद बीरबल वहां से वापस आया और सब लोग उसे देखकर एकदम से शॉक हो गए, लेकिन जो राजा था उसे तो सारी सच्चाई पहले ही पता थी। Actually, before the fire caught on, Birbal had escaped through a secret tunnel. The emperor welcomed Birbal and said, "Birbal, how are you? How are my ancestors?" Birbal replied, they are all very fine." Then the emperor asked Birbal, "Why have you grown a beard? Are you all right?" अब बीरबल जब वहां से वापस आता है तो राजा से पूछे, क्या तुम सही हो, क्या मेरे पूर्वज सही हो? कहते वो सब सही है। तो अकबर से पूछे कि तुमने इतनी दाढ़ी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है तुम्हारी? At this, Birbal replied, "Samrat, I am perfectly all right. But Samrat, there are no barbers in heaven. Your ancestors have in fact asked for the court barber." अब वो कहता है कि मैं तो सही हूँ और वहां पे भी सब सही है, लेकिन वहां पे कोई दाढ़ी बनाने वाला नहीं था, और इवन वहां पे जो आपके एंसेस्टर्स है उन्होंने भी हमारे सभा का ही बार्बर यानी हमारे सभा के ही जो
बार बार काटते इन सब चीजों को, जो दरबार में कि कहते हैं उनको नाई जो है उसको बुलाया है आपके सिस्टर्स ने. Akbar immediately agreed to send the wicked barber to heaven. The barber was called to the court. अब उसने भी, जो राजा था वो भी मान जाता है इस बार को, और उस नाई को सभा में बुलाया जाता है. When the barber heard all this, he fell at Akbar's feet and started crying. He asked the emperor to forgive him. He told him about the wicked plan of the conqueror. Akbar scolded the conqueror and warned them not to repeat such wickedness in future. अब वो रोकर सारी जो नाई है वो सारी बात बता देता है, और जो राजा होता है वो सभी सभासदों को डांटता है और वार्न करता है कि अगली बार से अगर ऐसा हुआ, ऐसा कोई घटिया प्लान बना या किसी को नुकसान पहुंचने की इच्छा रखी तो उसकी सजा मिलेगी. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.